हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को स्वामीनारायण जयंती, गुरु तेग बहादुर जयंती और महातारा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देयर हैज बीन स्लाइट रेन्स इन Delhi NCR, which is good. The weather is quite pleasant outside. By the way, I'm from Delhi. Today there is also World Health Day, so अपनी सेहत का ख्याल रखिए. That's what I'll pray for. If you're already come to the channel, then you can skip this section and move forward. But if you are new, my name is Saurabh Jain, and I've been building software for past 20 years. Recently, I quit my job, and fortunately, I was able to identify the purpose of my life. मैंने वो टाइम यूज़ किया to do this identification, and I've identified a mission for myself to make to contribute or give back to the society. So, if this is the mission, my mission is to make our town a better place to live, work, and grow. This is a long-term mission, but in short term, I'm focusing on the growth aspect of first. So growth of my country and the people of my country. Growth in terms of money. So I'm building a fintech product so that I can help people build a second source of income or a parallel income, passive income. Um, Underlying, I'm using stock and the capital market as the instrument to do that. So the thing what I'm building is purely based upon. So this is the detail of my first venture. I want to simplify wealth creation for the public using price action, mathematical models, technical analysis, and um, price action powered by equity and technology. Equity, as I mentioned, stock and the capital market. Technology, जो कि मेरा already background है. I know stock market काफ़ी already बदनाम है because there are already so many scams, fake accounts, or wrongdoing. So through this channel, I also want to help make people aware about these wrong things and also add value so that people can make better decisions and ensure that I do not make any mistake like what others did. Because we're talking about the stock market, I'll talk about the disclaimer. So I'm not a SEBI registered financial advisor or research analyst. As I said, I want to help people with this problem. So this video is only for education and knowledge purpose only. I do not do any stock tips or recommendations. आई डू नॉट सपोर्ट फ्यूचर ऑप्शंस. सो इस वीडियोस में या मेरी सेट ऑफ वीडियोस में जो भी आप देखेंगे, इट विल नॉट कंटेन एनी ऑफ द एफएनओ स्टॉक्स लाइक रिलायंस, ट्रेंड और मे बी समथिंग एल्स. राइट, मेरा कोई भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल नहीं है, सो दैट you do not get misled by a similar channel in my name. I want people to do their own research. My only objective is to augment their research with the with my content that I'm creating. Uh, so yes, this is what I wanted to share. So this is what we are going to discuss. We will explore the stock market, Nifty Bank, and about the positive algorithms that I've created, right? So this. So before we deep dive into these algorithms, I want to showcase basically मैं बना क्या रहा हूँ. So जैसे मैंने बताया, using these four pillars, which is price action, algorithms, mathematical models, and technical analysis, I do not use fundamentals. मैं fundamentals क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एंड शेयर करूंगा, so that you understand कि why I made that choice. These videos are mainly to showcase the efficiency and the accuracy of these algorithms जो मैं बना रहा हूँ, and I feel that they are pretty good. It's like a lot of data which is being generated, and I want to share that data with the public. So this service which I'm creating, that will be mainly be the scanning and the alerting service. Alerting which will come in the future, but scanning for now, which you can use to like find out opportunities and uh, match it to your research already, right? So आज के basis पे अगर देखा जाए तो this is the screenshot which I generated, right? There in the positive pattern there are like many stocks जैसे market में देखा positive है in V pattern, M, W, OTW and 2MH. ये क्या pattern है इनके बारे में we'll discuss more, but in some other videos, but these are the some positive patterns that I've created. Then there are negative patterns which are 2ML, 2MH, right? Possibly 4. And one of the mistake that I did, which is trend. So I'll also talk about that मैंने कहाँ पे उसको लिया था और कहाँ मुझे उसको exit कर देना चाहिए था, but I kept holding it, which was a mistake. So now let's jump into some of these things, right, which we wanted to discuss, right? So let's go to Nifty Bank. Yes.
So right, in this screen you see some of these. Let me turn on the brush. तो इस स्क्रीन में आपको काफी सारे ये इंडिकेटर दिख रहे होंगे. लेट्स फॉरगेट अबाउट द इंडिकेटर्स फॉर नाउ. मैं इनको अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कौन सा यूज करता हूँ ईएमए मैकडी और आरएसआई में. बट इफ यू सी हियर राइट, सबसे पहले ओके, इफ यू आर आल्सो फॉलोइंग दिस, आपके चार्ट के अंदर नीचे it should be on every column should be on basis of month, like December and January and February and March. If you zoom it will start showing some dates in between. So this is what we do not want, right? For my model of to like interpret my model correctly. So it should be like this, right? So I am suggesting so that in your charts also you see the right thing. Okay, right. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी हैज फॉलोन अ लॉट. अगर मैं पहले और वीडियो बनाना चाहता था बट आई डिड नॉट गेट अ चांस. सो बेसिकली मेरा एक मॉडल है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है विच सजेस्ट कि बैंक निफ्टी कब नेगेटिव हो गया था. तो इफ यू सी है बैंक निफ्टी इज लो ऑफ फेब्रुवरी. और लेट मी डू समथिंग एल्स, राइट? लेट मी हाइड दिस चार्ट टू सम एक्सटेंट. राइट. सो नाउ इफ यू सी हियर, जनवरी में इट मेड अ लो विच इज दिस, विच इज 58121. और फरवरी में इट मेड अ लो विच इज 57783. अब लाइक व्हाट वर द फैक्टर्स, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, we don't want to go into that. So that's what the fundamentals of the other news means, and I do not focus on all those things. ये बजट का दिन था, यहाँ मार्केट गिरी और फिर अगले दिन दो दिन बाउंस बाउंस बैक हो गई. So again we don't want to focus on that. But important thing is this, like if you see March, right, on this date, which is what, 6th of March. So 6th of March अगर आप देखें, it made a low of 57696 which is below the low of February. और इसने क्लोजिंग दी at 73.25. और यहाँ पर अगर 73.2, यानी कि मार्जिनली अबव द लो, राइट? एंड इट टच बिलो द लो. सो मैंने एक मॉडल डिजाइन किया है जो कि बताता है कि पॉसिबली कि क्या ये नीचे जा सकता है यहाँ से, राइट? सो दिस इज वन सच इंडिकेटर इट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग फ्रॉम हियर. और यही हुआ. तो दिस गेव द कंफर्मेशन दैट यस मार्केट हैज नाउ स्टार्टेड द डाउन ट्रेंड. तो अगले दिन हमने देखा 9 मार्च को इट लाइक वेंट बिलो दिस लेवल विच इज ऑन 9th ऑफ मार्च. इसने लो क्रॉस कर दिया, क्लोजिंग भी दे दी. और उसके बाद ये कोशिश करा उठने की, गिरा, फिर उठने की कोशिश करी, फिर गिरा. और एंटायर मार्च हैज बीन नेगेटिव, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंटरप्रेट हियर इज और सजेस्ट और शेयर दैट आई डिजाइन अ सिस्टम. अगेन उसका ट्रस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आई हैव नॉट शोन अ लॉट मेनी एग्जांपल्स. बट दिस इज वेयर अर्ली इंडिकेटर कुड हैव गिव कम that things are getting negative. और यहाँ से people could have reduced their positions or like use my tool as a support to their research and make maybe take a decision कि क्या उनको position reduce करनी थी so that they could have minimized their losses, या इस loss trap में वो नहीं फंसे होते. तो यहाँ पर कम से कम 10,000 करोड़ के ऊपर का लोगों का वेल्थ इरोजन हो गया था या पोजीशन माइनस हो गई थी. बट दिस इज व्हाट माय सिस्टम कुड हैव हेल्प अवॉइड इट, राइट? नाउ कम्स द अप्रैल. तो अप्रैल में हमने देखा इट वेंट बिलो द लो ऑफ मार्च, राइट? सो दिस इज द लो ऑफ मार्च विच इज व्हाट 5105. और अप्रैल का लो है इज 49954, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 50,000. जस्ट अ सेकंड. सो इट वेंट बिलो द लो. नाउ वी कैन सी दी, हम अप्रैल में रिकवरी देख रहे हैं. बट इज दैट अ रिटर्न, इज दैट अ लाइक बाउंस बैक? नो, इट इज स्टिल नॉट डिसाइडेड. तो उसी के लिए मैंने एक मॉडल बनाया है विच इज अ वी मॉडल, राइट? अब वो पिक्चर में कब आएगा? हमने देखा अप्रैल का जो लो है दैट इज बिलो द लो ऑफ मार्च, राइट? तो मैंने एक पैटर्न बनाया है विच इज अ वी पैटर्न. तो वी पैटर्न में देयर हैज टू बी अ लो, राइट, ऑफ अप्रैल, राइट, विच शुड, अप्रैल में तो लो ऑलरेडी बन चुका है. अभी कहीं पे भी क्रॉस क्लोज हो अप्रैल में, चाहे यहाँ पे क्लोज हो, चाहे यहाँ पे क्लोज हो, चाहे यहाँ पे क्लोज हो, दैट लो इज ऑलरेडी अब बिलो द लो ऑफ मार्च. हमें अब मई में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए दैट इट डजंट गो बिलो द लो ऑफ दिस. तो मे बी पॉसिबली मई में यहाँ तक जा सकता है या यहाँ तक जा सकता है, कहीं पे जा सकता है, हमें नहीं पता व्हाट दैट लेवल वुड बी. और आई एम नॉट दैट एनालिस्ट जो कि फिबोनाची सीरीज यूज करके मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल दिखाए. सो माय सिस्टम इज नॉट लाइक दैट.
तो मेरे को क्या लगता है यहाँ से क्या होगा अप्रैल में मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। इट कुड बी यहाँ तक, या इट कुड बी कहीं तक भी, और मे बी ऊपर, दैट विल टेक अ डिप, राइट? नाउ दैट डिप कुड बी एट दिस पॉइंट, और इट कुड बी अप टू हियर एज वेल, राइट? इट कुड बी एनी। और ये मई का जो लो है दैट शुड बी अबव द लो ऑफ अप्रैल। अगर ऐसा हो जाता है और मई वी आर अबाउट टू क्लोज, then that is a good opportunity. Then we can say yes, the markets are recovering. So that is where we should, like, my, again, people can use my algorithms or any other system, or with their research they can take the decision कि हाँ यहाँ से चीजें पॉजिटिव हो रखी हैं, and maybe we can plan to invest, right? So this is what I interpret on बैंक निफ्टी। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी को देखा जाए, 3-4 दिन ऑलरेडी ग्रीन कैंडल दे चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट स्टिल आई टेक सम एग्जांपल्स ऑफ माय एल्गोरिथम, जो कि ये सजेस्ट करते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आगे। सो आई डिस्कस दोस एग्जांपल्स, लाइक जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि मेरा वी और एम, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, राइट, इन दिस स्क्रीन, कि मैंने यहाँ पे वी, एम, डब्ल्यू, ओ टी डब्ल्यू और 2 MS की बात करी है, तो ये क्या है, राइट? So I'll show you one example from each one of them, right? Maybe a V pattern, right? एंड अगेन जो भी डेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट विल, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि जो ये स्कैन मैं बनाऊँ got the interest of the investors, तो आई डू नॉट गो बिलो द रेंज विच इज डिफाइंड बाय द सेबी, कि जो मार्केट कैप है ऑफ द स्टॉक दैट शुड नॉट बी लेस देन 500। तो जितने भी मेरे स्कैन्स में जो डेटा आएगा दैट इज विल बी अबव 500 करोड़ मार्केट कैप स्टॉक्स ओनली, राइट? तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, आई डू नॉट वांट टू टेक एग्जांपल ऑफ those stocks which are part of FNO. So let me check, maybe South Bank, right? So South Bank एक स्टॉक है मेरे वी पैटर्न में। Now what does this V says? V says कि ये जो लो है, राइट, तो फरवरी का लो शुड बी अबव द लो ऑफ मार्च, एंड अप्रैल का लो शुड बी अबव द लो ऑफ मार्च। दिस इज काइंड ऑफ अ वी पैटर्न। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, इफ यू कैन प्लान है, दिस कुड बी दी एसएल, राइट, एंड पीपल कैन प्लान इन्वेस्टमेंट। लेकिन मुझे लगता है ऑल दीज आर रिस्की बेट्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि मार्केट ने अभी कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया है। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो स्टिल टेस्टिंग, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये नीचे आ जाए, मे बी मार्च के नीचे ना जाए, बट स्टिल इट कैन कम फर्दर डाउन। तो दैट वुड ऑल्सो बी दी अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट, बट दीज आर ऑल्सो दी अपॉर्चुनिटीज। Let's say one more example in the same category, which is Mahalog, right, which is Mahindra Logistics, right? Here also we can see इसने बहुत अच्छा रन दिया इन जनवरी, राइट? तो ये मेरे जनवरी के मॉडल में, यस, सो दिस इज नवंबर, दिसंबर, जैन। मेरे जैन के मॉडल में इस दिन में ये मेरे 2 MH पैटर्न में आया होता, विच इज 2 MH 2 मंथ्स हाई, एंड ये मेरे OTW पैटर्न में भी आया होता जो मैंने डिजाइन कर रखा है। तो देयर वुड हैव बीन अपॉर्चुनिटी कि अप्रैल जनवरी में पीपल कुड हैव इन्वेस्टेड, एंड और ये यहाँ से ऊपर गया होता। लेकिन अब हम यहाँ पे वी पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो वी पैटर्न क्या बोलता है कि जो फरवरी का लो है, विच इज दिस, इज अबव द लो ऑफ मार्च। मार्जिनली हाई है, लेकिन हाई है, क्योंकि ये लो पॉइंट कितना था, ये लो पॉइंट था 334.65, और ये लो पॉइंट कितना है, 330। तो ये इसके नीचे गया है, राइट? और अप्रैल का लो इज अबव दिस, विच इज दिस पॉइंट, राइट? अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूं, तो विच इज दिस पॉइंट, और ये पॉइंट कितना है, 333, राइट, मार्जिनली। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिस इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ अ डिपिंग अपॉर्चुनिटी कि विद दिस एसएल अ पर्सन कैन इन्वेस्ट एंड कैन प्लान फॉर इट, राइट? एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ग्रेफाइट, राइट? सो ग्रेफाइट इज ऑल्सो लाइक सिमिलर थिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फरवरी का लो इज अबव द लो ऑफ मार्च, और अप्रैल का लो विच इज दिस, राइट, इज अबव द लो ऑफ दिस। सो विद दिस एसएल वी कैन प्लान एंट्री। अब यहाँ से पॉसिबिलिटीज मैंने बताया वही है कि हो सकता है यहाँ पे ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आ जाए, फिर डिप ले, और फिर यहाँ से ऊपर जाए, ऐसे। अगर ऐसा होता है देन इट विल, दैट if this happens then it will become available in my M pattern. Now what is M pattern, that we'll discuss in the next, in a while, right?
सो जैसे मैंने बताया मेरे एम पैटर्न में देर आर लाइक अप्रोक्सीमेटली 6 स्टॉक्स। अब वो कौन से स्टॉक्स है, आई फील दैट दे आर प्रीटी गुड। सो लेट्स सी व्हाट दोज आर। फोसेक, फोसेक इंडिया, राइट। ओके ना, अगर हम इस स्टॉक को देखें अब, राइट, इंडिकेटर्स को बाद में देखेंगे, बट दिसंबर में, जनवरी में इट मेड अ लो, फरवरी में इट मेड अ फर्दर लो, राइट, ये लो पॉइंट है। और इन February itself, it gave a good run, right, which is this, and it went up to the high of 5443, right, which is above the high of this 5415। यानी कि दिसंबर जनवरी के हाई के ऊपर क्या इसने क्लोजिंग दी? नहीं दी। ये हाई गया लेकिन हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, बट दिस इज स्टिल अ पॉजिटिव मूव। उसके बाद इसने मार्च में थोड़ा सा डिप लिया, राइट, यहाँ पर, और अब अप्रैल में ये फर्दर इस लो के नीचे चला गया। सो व्हाट द एम पैटर्न सेज इज कि फरवरी के ऊपर मार्च का लो होना चाहिए, और अप्रैल का लो कैन बी बिलो द लो ऑफ मार्च, बट इट हैज टू बी अबव द लो ऑफ फरवरी, राइट। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर यहाँ पर हमें एंट्री प्लान करें तो विद अ वेरी मिनिमल एस एल, राइट, अगर हम यहाँ पे देखें ये एस एल कितना निकल के आ रहा है, राइट, तो अगर हम इसकी बात करें और यहाँ पे अगर हमने इसको प्लान करें विच इज एट 4518, राइट, और एस एल लेवल कितना है 4300, 4518। So for the SL of 500 we can invest approximately 10,000 in this stock, यानी कि 5% की SL के ऊपर इट कैन गिव अस गुड अपॉर्चुनिटीज। तो अगर यहाँ से मार्केट पॉजिटिव रहती है, ये ऑलरेडी गिर रहा है, अगर ये या तो 500 रुपये का SL लगेगा, या अगेन यू कैन डिफाइन दैट नंबर योर ओन, बट आई क्रिएटेड दिस कैलकुलेटर, आई आल्सो शेयर दिस कैलकुलेटर विद अदर्स। तो यू कैन चेंज द मैक्सिमम लॉस एंड और दिस जस्ट मल्टीप्लायर ऑफ 500, 10 20 30 हज़ार पे 500 हज़ार या 1500 का लॉस पे वी कैन प्लान दिस, वी कैन यूज दिस मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। सो दिस इज द एम मॉडल। अगर मैं एक और इसका एग्जांपल लूं विच इज लिंकन, लिंकन फार्मा, राइट। सो सिमिलरली, सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव पैटर्न, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये मेरा जो 2 MH वाला पैटर्न है उसके अंदर ये यहीं पे मार्च फरवरी में ट्रू हो गया होता विद द एसएल ऑफ दिस पॉइंट। उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ पर अगेन देयर कुड हैव बीन सम प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल। तो अगर हम फरवरी की बात करें तो विद दिस एसएल, राइट, व्हिच इज दिस बॉटम पॉइंट, व्हिच आई थिंक दिस विल बी दिस डे व्हिच इज 450, राइट, यस 450। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि फरवरी का लो इज बिलो द लो ऑफ मार्च, राइट, आई थिंक दिस मार्च, और अप्रैल का लो इज बिलो द लो ऑफ मार्च, राइट। लेकिन ये यहाँ तक जाना इज हाईली अनलाइकली अंटिल ये बुरा हो जाता है, राइट। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना, लेकिन वी कैन इवन एग्जिट बिफोर this SL of February. So I'll explain that in future in some other video also, right? तो ये अगर हम यहाँ से तो कैलकुलेट करें 450 और व्हाट इज द करंट प्राइस 550, लेट्स से 550, तो 550 450 3000, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3000 रुपये की आ रही है फॉर 500 का लॉस, क्योंकि ये लॉस काफी डीप है। वाई दिस इज डीप? दिस इज डीप लॉस ऑफ 18%, राइट। तो अगर ये और थोड़ा नीचे आ जाए, अगर ये आए तो और ज़्यादा अच्छा ही है इसके लिए, तो देन दिस वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस लिंकन स्टॉक, right? So this is the M pattern. Now let's take example of a W pattern. So W is like a higher high pattern, right? But like there is stock called Wheels, right? So अगर Wheels को हम देखें, इसने दिसंबर जनवरी में इसने लो बनाया, और फरवरी में इसने ऑलरेडी एक यहाँ पे एक फरवरी का लो इज अबव द लो ऑफ जनवरी। तो ये वी पैटर्न है, तो ये मेरे वी पैटर्न में भी आगे आइडेंटिफाई हो गया होता, राइट। देन
In March, it again made a W pattern. W pattern कैसे? Basically, low of January is below the low of February, और February का low is below the low of March, और March का low is below the low of April फिलहाल, right? तो इस SL के हिसाब से people can enter, और अगर यहाँ पर प्लान किया जाए तो they will be high. This is in uptrend, right? Because many other indicators are also showing this. ये कैसे है? We will explain in some of the video as well. Right. So this is the W pattern. एक और अगर मैं दिखाऊं सकर, right, again you can see here, इसने नवंबर में एक लो बनाया, दिसंबर का लो उसके नीचे है, जनवरी का लो उसके ऊपर है, राइट, जनवरी का लो उसके ऊपर है, और फरवरी में एक क्रॉस अबव दी लाइक दिस 2 मंथ्स हाई, और यहाँ से ये पॉजिटिव चल रहा है। तो मेरे 2MS मॉडल में भी फरवरी में ये आया होता, मेरे वी पैटर्न में ये, अगर आप देखें नवंबर, ये कौन सा हो गया, दिसंबर और जनवरी, जनवरी के एंड में ये मेरे वी पैटर्न में आया होता, क्योंकि इसने इस टाइप की शेप बनाई है, राइट, ये मेरे वी पैटर्न में आया होता, और अभी ये डब्ल्यू पैटर्न में आ रहा है। डब्ल्यू पैटर्न कैसे? क्योंकि अगर हम 3 महीने, तो ये पैटर्न जो बन रहे थे बेसिकली ऑन दी रनिंग ऑफ 3 मंथ्स। तो अप्रैल का जो लो है दैट इज दैट इज अबव द लो ऑफ मार्च, और मार्च का जो लो है दैट इज अबव द लो ऑफ फरवरी, राइट, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो वी कैन प्लान विद द एसएल ऑफ दिस पॉइंट एंड प्लान एंटरिंग दिस स्टॉक, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि रिकवर कर रहा है, तो देयर अ पॉसिबिलिटी इट विल गो अप फ्रॉम हियर, राइट। तो अगर हम एक 2MH वाले की बात कर लेते हैं, राइट, let's take this example, MTAR Technologies, right? If you see here, it has closed above the high of 2 months, right? तो जो ये मॉडल है कैसे काम करता है, इट वर्क्स ऑन दी लाइक रनिंग ऑफ 2 मंथ्स। बाय द वे, मैंने ये वाली जो रन है इसका फायदा उठाया था, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ अगेन इट केम इनटू माय सिस्टम, और कैसे वी कैन राइड फ्रॉम दिस टू दिस जर्नी। जैसे आप देख सकते हैं जो स्टॉक है, इट वेंट फ्रॉम 1600 से 4000, डबल्ड, लाइक वट एवर वॉज इन्वेस्टेड हैज बीन डबल्ड अंटिल नाउ, और यहाँ से इट स्टिल हैज द अपॉर्चुनिटी टू गो अप, राइट। तो इसने फरवरी और मार्च का हाई क्रॉस कर दिया यहाँ पे, राइट। तो दिस इज व्हाट इट कम्स इन माय स्कैन। इसको वी कैन प्लान with the SL of this point. So basically, what does that mean? This is 3926, 3309, 3926, 3309. So with the SL of 15%, a person can invest, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम लॉस 500 रुपये का आएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इन एल्गोरिथम को डिस्कस करने का, लाइक देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम व्हिच आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। एक तो एल्गोरिथम्स व्हिच आर एफिशिएंट, व्हिच ब्रिंग्स क्लोजर यू टू सक्सेस। सेकेंडली, आई ऑल्सो हेल्प आइडेंटिफाई द स्टॉप लॉस लेवल्स, क्योंकि मैंने पास में मिस्टेक्स करी हैं, वी ब्लाइंडली बाय स्टॉक्स 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए का, देन व्हाट हैपन्स, यू स्टॉप मॉनिटरिंग इट, और वो इतना डीप माइनस में हो जाता है, देन यू फील लाइक कि मैंने क्या गलती कर दी। बट इफ यू हैव अ कैलकुलेटेड रिस्क असेसमेंट, कि चाहे 500 रुपये का लॉस है या 5,000 का लॉस है, यू नो कि इतना ही मैक्सिमम हो सकता है, एंड यू नो एट व्हाट पॉइंट, देन यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज इट्स ऑल कैलकुलेशंस, राइट, विच यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, हार्डवेयर करके एक स्टॉक है, राइट, दिस हार्डवेयर। सो इफ यू सी है, इसने ऑलरेडी अच्छा खासा रन एक दे दिया है इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टाइम फ्रेम, राइट। यहाँ पर ही मार्केट जब थोड़ा सा डिप लेकर रिकवर करी थी, तो ये नवंबर में चल पड़ा था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इट मेड गुड गुड रिटर्न्स, राइट। अगर हम यहाँ से देखें, 15 रुपये से इट वेंट अप टू लेट्स से 19 रुपीज, एंड अगेन जैन, फेब, मार्च, राइट। अगेन ये इतना लाइक इन द लिस्ट शुड बी लेस फेवर्ड, क्योंकि
इसका जो RSI वो काफ़ी हाई है, राइट? वी शुड नॉट इन्वेस्ट एट सच हाई RSI, क्योंकि यहाँ से नीचे आने, सॉरी, so this is not a good example. It came, but like, अच्छा, मेरे बाय द वे अगेन, ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एग्जांपल्स इज टू आल्सो शोकेस कि मेरे केस ऑल एल्गोरिथम में आया होता, तो इन सारी जगहों पे ये मेरे OTW एल्गोरिथम में आया होता, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये भी मेरे OTW एल्गोरिथम में आया होता, विच टेक्स इनटू अकाउंट्स दी लाइक 26 पैरामीटर्स, दीज इंडिकेटर्स, मैकडी, RSI, और मे बी इस कैंडल में या इस हैमर पे, कि इन सब जगहों पे इसने बताया होता। तो अगर यहाँ पर भी किसी ने मेरा वो स्कैनर या यूज़ किया होता, तो पर्सन वी कैन मेक लाइक 17.80 से कितना हो गया, 20.25 कितना होता है? अगर मैं यहाँ से देखूँ 20.25 अप्रोक्सीमेट 12%। तो 12% का प्रॉफिट रन यहाँ से मिल जाता। और राइट नाउ दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट टू एंटर, क्योंकि इसका RSI ऑलरेडी 80 पे है, जो कभी हमें करना नहीं चाहिए। तो RSI ऑप्टिमम RSI इज अराउंड लाइक 50 to 60, राइट? तो बट इट केम अंडर द 2MH पैटर्न, क्योंकि फरवरी का लो इज बिलो द लो ऑफ मार्च, और अप्रैल का लो इज बिलो द लो ऑफ मार्च। लेकिन ये अप्रैल में हाईली पॉसिबल है नीचे आएगा, लेकिन मार्च की लो के शायद ऊपर रहे। तब ये हो सकता है अगले महीने में, मई में, एट दिस पॉइंट मे बी इट कुड बी फेवरेबल, राइट? नाउ लेट्स look into OTW. Like there's one stock called Gallant, right? So look at this chart. It's a really good chart, right? So if I come back here, so this is what we were discussing, like Gallant. अब गैलेंट में जो OTW इट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम दी हाइज एंड लोज, तो बेसिकली ये इन इंडिकेटर्स को टेक इनटू अकाउंट करता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, अगेन इट हैज बीन लाइक होल्डिंग बैक। तो अगर ये इसको मैं अपने वी पैटर्न में देखता, तो ये मेरे वी, तो अगर मैं इसको वी पैटर्न में देखता, तो दिस नवंबर एंड दिसंबर का लो इज बिलो दी लो ऑफ नवंबर, और जनवरी का लो इज अबव दिस। तो ये जनवरी के एंड में अगर हमने इसको स्कैन रन किया होता, तब भी मेरे स्कैन में आया होता, तो ये वाली विंडो कैच करी जा सकती थी। उसके बाद फरवरी में ये जो लो है, इट वेंट बिलो द लो ऑफ जनवरी, राइट? लेकिन इट इज अबव द लो ऑफ दिसंबर, तो ये मेरे एम पैटर्न में आया होता, राइट? यहाँ पर इस दिन इसको इसको वी कुड हैव प्लान्ड आउट। RSI भी यहाँ पे काफ़ी कम था, यहाँ पर भी ये विंडो मिल जाती। देन फरवरी के एंड वुड हैव प्लान, SL हमारा तब भी यही रहता। मार्च में हमारा SL हिट नहीं होता, राइट? और हम यहाँ पर देखिए, ये हमारा उसमें भी ट्रू रहता है, जो है आपका दैट व्हाट इज दैट 2MH, क्योंकि इसका जो लो है इस बिलो द लो ऑफ मार्च, और अप्रैल का लो इज अबव द लो ऑफ मार्च। तो फरवरी का नीचे है, मार्च का उसके ऊपर है, अप्रैल का उसके ऊपर, दिस ऑल पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कैंडल है यहाँ पे, राइट? तो अगर इस स्टॉक को हमें प्लान करना है, नाउ अगेन वी जस्ट कैन नॉट पुट ब्लाइंडली से 10,000 50,000 into this. We need to put with the SL, right? So this is the possible SL level where we can enter, right? यहाँ पे markets are recovering, MACD is like changing direction, RSI ने already यहाँ पे direction change कर दी है, तो it's all positive, right, in this stock. So hope you're liking it. If you have any feedback, like post the comments, subscribe to my channel, and maybe you will learn more about these patterns and help your investment journey and identify better opportunities जो कि मैं करना चाहता हूँ। Yeah. Okay. So one other thing that we wanted to discuss is my mistake, like Trent. So what is this mistake that I'm talking about? So Trent is not a bad stock. It's a good stock. Zudio जगह जगह खुल रहे हैं, जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में लाइन से Zudio खुले हुए हैं, एंड दे ऑल, मैंने रिसेंटली वहाँ से चप्पल भी खरीदी है, which आई एम लाइकिंग इट, राइट? बट Zudio is ट्रेंड, राइट? मैंने जब इसको बाय किया था तब ये 10,000 रुपये का था, और आज के दिन में कहाँ पहुंच गया, लेट्स सी।
तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक सिंस अगस्त, राइट। तो अगर मैं इसको हटाऊं और इसको चूज कर लूं एंड देन इफ आई ट्राई टू मूव द चार्ट, लेट्स गो टू अगस्त 2024, राइट। तो मेरी तरह किसी और ने भी ये चार्ट अगर इस इतना बढ़िया चार्ट देखा होता तो उसके मुंह में पानी आ जाता कि हाँ यार ट्रेंड बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको इन्वेस्ट करते हैं। नो डाउट इट्स रियली गुड। लेकिन द मिस्टेक विच आई डिड विच आई वांट पीपल टू अवॉइड इज दैट्स व्हाट आई वांट टू शोकेस है। तो बेसिकली तब मैंने ये पैटर्न इंप्लीमेंट नहीं किया था जो मैंने अभी बनाए हैं। 2024 में मेरे पास ये नॉलेज नहीं थी, 25 में भी मिड 25 के बाद मैंने ये नॉलेज इंप्लीमेंट करी है, तो दैट इज व्हाई आई वांट टू ब्रिंग दिस टू यू, राइट। तो मैंने इसको 13 अगस्त को लिया, 13 अगस्त को लिया। आई डिड नॉट डिफाइन दी एस एल लेवल। सो आइडियली दी एस एल जैसे मैंने बताया, ये ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो दिस लो विच इज जून का लो इज बिलो द लो ऑफ जुलाई, और अगस्त का लो इज ऑल्सो अबव जुलाई विच इज गुड। तो मेरा एसएल होना चाहिए था जुलाई का लो पॉइंट, यानी कि इसके नीचे अगर चला जाता विच इज 4955। और जो मेरे मॉडल्स हैं दे ऑल आर ऑन द रनिंग विंडो ऑफ 3 मंथ्स, राइट। तो अगर हम अगस्त में बात कर रहे हैं तो हम जुलाई और जून को देखेंगे, और अगर हम सितंबर की बात करेंगे तो हम जुलाई, अगस्त और सितंबर को देखेंगे, राइट। तो जब मैंने इसको बाय किया 13 तारीख को, तो मेरा पहली बार मैक्सिमम लॉस यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए था। तो मुझे बाय करना चाहिए था 6381 का, लेट से मैंने बाय किया होता 6382 का, और मेरा एस एल लेवल उसका होना चाहिए था विच इज दिस, राइट, विच इज 4955, 4955। तो मुझे कितने बाय करने चाहिए थे? 2200 रुपए के। अगर मुझे 500 का लॉस लेना था, अगर मुझे 5000 का लॉस लेना था, तो मुझे 22,000 रुपए का मैं इसको इन्वेस्ट कर सकता था, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। सितंबर में मैंने फिर थोड़े पैसे डाल दिए कि चलो मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा। अक्टूबर में मैंने फिर थोड़े पैसे डाल दिए कि लेट से थोड़ा पीछे आते हैं, राइट। तो मैंने 13 अगस्त को पैसे डाल दिए। फिर मैंने इसके अंदर 23 सितंबर को पैसे डाले। व्हाट इज 23 सितंबर? नाउ 23 सितंबर इज दिस। नाउ इफ यू सी ऑन 23 सितंबर आई रॉन्ग डिसीजन। तो ये सारे मतलब आउट ऑफ लव आई बॉट दिस ट्रेंड कि भाई जूडियो है बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्रीड। सो दिस ग्रीड शुड नॉट कम इन द लाइक इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 78 RSI टू हाई, राइट। मैकडी, ठीक है, मैकडी स्टिल गुड। मुझे यहाँ से लगा कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो देन आई इन्वेस्टेड अगेन। अगर मैंने यहाँ से इन्वेस्ट भी किया, अगर मैं कोई यहाँ पे लेट्स से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एस एल लेवल शुड हैव बीन डिफाइंड। तो एस एल शुड हैव कुड हैव बीन दी लो ऑफ व्हाट डू यू से अगस्त, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 7623 पे एंटर कर रहा हूँ, 7623 पे, तो मेरा जो एस एल होना चाहिए था दैट शुड हैव बीन दिस पॉइंट विच इज व्हाट 5195, लेट्स से 5195, 31%। तो 500 रुपए के लॉस के लिए 1500 इन्वेस्ट करने चाहिए था। अगर मुझे 5000 का लॉस दोबारा एक और रिस्क लेना था, तो 15,000 इन्वेस्ट करता। तो 22,000 प्लस 15,000 अभी तक, राइट। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर। फिर मैंने दोबारा आउट ऑफ ग्रीड कि थोड़ा नीचे आया या शायद बढ़ा, मैंने इसको 3 और 4 अक्टूबर को फिर बाय कर लिया, राइट, राइट। 3 और 4 अगेन इन ग्रीन कैंडल्स पे ये मेरे किसी पैटर्न में नहीं आया होता जो मैंने आज के में डिजाइन करे हैं। तो दीज वुड हैव बीन जस्ट काइंड ऑफ ग्रीडी बाय, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, राइट। अब अक्टूबर में आगे क्या हुआ? अक्टूबर में टू सम एक्सटेंट इट वेंट अप बट इट डिड नॉट सस्टेन, राइट। कितने तक गया ये? 8300 तक, 2024 में। फिर 11 अक्टूबर को मैंने फिर दोबारा खरीद लिया इसको, इस दिन आउट ऑफ ग्रीड कि ये मिल रहा है, ठीक है। बट नाउ यू सी हियर व्हाट हैपेंस। अक्टूबर में इट वेंट बिलो द लो ऑफ सितंबर। सितंबर का लो कितना है? 6950। और क्या इसने लो टच किया? नहीं किया अभी। क्या इसने यहाँ पे टच किया? नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें नवंबर, नाउ नवंबर स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट 6968, राइट। व्हाट इज द लो? 6950। स्टिल अभी लो को इसने टच नहीं किया।
इस दिन 69। हाँ, यहाँ पे देखिए लो नीचे चला गया, 6794 पे हो चुका है। तो दिस इज वेयर माय जो मेरा 2 ml वाला मॉडल जो मैंने ये बनाया है, इट वुड हैव गिवन द अर्ली इंडिकेटर कि भाई ये नेगेटिव होने वाला है, यू लुक इनटू योर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो वहां पर मैंने लोगों वो हेल्प कर दिया होता, बट आई डिड नॉट, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, मैंने कोई अलर्ट नहीं लगा रखी थी, तो ये नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर उसने क्लोजिंग ही दे दी उस पॉइंट के नीचे, राइट, 6955, राइट। और ये कौन सा पॉइंट था, 6950। तो यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी, तो दिस इज द पॉइंट वेयर आई शुड हैव एग्जिटेड माय पोजीशंस। ये पॉइंट अभी भी मेरे दोनों से लेवल के ऊपर है, बट क्योंकि हम रनिंग विंडो को देखते हैं तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में ही ये बेकार हो चुका है। मे बी हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ होता है या एट पार हम निकल गए होते, बट दिस इज व्हाट आई शुड हैव डन, बट आई डिड नॉट डू इट। उसकी वजह से क्या हुआ अब आगे देखते हैं, राइट। आई वेंट इनटू अ लॉस ट्रैप। तो ये नवंबर है, दिसंबर में थोड़ी सी कभी कोशिश करनी करी, नहीं हुआ। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में फिर इसने नवंबर का लो तोड़ दिया, विच इज द लो ऑफ 2 मंथ्स। ये जनवरी 2025 बेकार हो गया। फिर, राइट, फिर फरवरी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बेकार ही बेकार चले जा रहा है तब से, राइट। थोड़ी सी इसने विंडो दी यहाँ पे, लाइक व्हाट इज दिस, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस टाइम पे जब सारी मार्केट भागी, ये सिर्फ थोड़ा सा भागा, राइट। तो मेरे वी पैटर्न में यस अप्रैल और मई में कुछ हद तक ये आ गया होता, बट डिड नॉट लाइक सस्टेन, डिड नॉट गिव अ गुड रिटर्न्स और गुड जर्नी। ये थोड़ा सा ही विंडो दिया इसने 2 महीने का। फिर दोबारा इफ यू सी हियर, मई जून जुलाई, राइट, जुलाई में बैठ गया, राइट, एंड वेंट बिलो द लो ऑफ मई का लो कितना है, 5063। व्हाट इज दिस, 49। तो अगेन लाइक इट नेवर केम अप, पर ये मेड मी गेट इनटू अ लॉस ट्रैप। तब से हम देख रहे हैं नीचे ही नीचे जाया जा रहा है, राइट। So this is what I want to showcase to you guys. Sorry. So this is what I want to showcase कि never love a stock. Right? There are many good stocks. सारी कंपनी अच्छा कर रही हैं, तभी वो ग्रो कर रही हैं, राइट। उनकी मार्केट वैल्यूएशंस बढ़ रही हैं और बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इवन दो द कंपनी इज गुड, अब कोई बोलेगा कि शायद 1.5 2 साल ये स्लो डाउन है, ये ऊपर कम बैक करेगा, डेफिनेटली कम बैक करेगा, बट that means my capital is blocked for all this period. I did not or could not take opportunity of the other good things which were available, right, which I could have. तो ये चीज मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि they can like either exit, reduce their position, take better investment decisions, minimize their losses, maximize their gains, and move forward, right. So these are some of the things which I wanted to discuss इस विंडो में, जैसे हमने यहाँ पे बात करी. If you are interested, if you like this channel, uh, or the content that I've created so far, uh, right? Uh, Subscribe and join this channel. I try to come live every day between like 4 to 5 p.m. आज मेरा थोड़ा late हो गया because of the setup. Maybe कल से I'll be early and come here. Um, so yes, जाते जाते I want to share a thought of the day that before starting my YouTube channel, I again gave a lot of thought कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि I do not leave, do not do wrong in the stock market, और मेरी तरफ से कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, मेरी तरफ से कोई लोग गलत डिसीजन ना ले लें, सो दैट ऑलरेडी जो ये फ्रॉड या स्कैम्स चल रहे हैं वो ना हो। तो आई गिव इट अ थॉट एंड प्रिपेयर अ चेकलिस्ट फॉर माई सेल्फ फॉर डूज एंड डोंट्स कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। इफ़ यू ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ and try to be available on internet or social media, then do check that video. I'll post that link uh, in this video when I publish this. So hope that will be helpful, right? Please pardon me if I made any mistakes. My objective is to demonstrate the efficiency and accuracy of my algorithms. And if you are interested in this data, I will be making a Google form available. You can fill this form and share your feedbacks in the comments and in the Google form. And let's make it better for everybody and help more people to invest and grow financially. Right. Thank you and take care.